Hello students, a very good morning. In the last video, we already discussed about the class 12 accountancy subject, that is issue of shares, already the concepts and how to solve. In this video, we will discuss or we will take an example of issue of shares and the pro rata question and solve it how to do it. Let's take an example. So, suppose that a company is issuing 3,20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 as a 50. Let it be example, just suppose it's divided into 3 as an application and 5 as a allotment and the remaining as a first and final term. So, it will be 5 plus 3, 8, 15 minus 8, that is, it will be 7. And it's already given in the question that the 1 will get the premium adjusted of rupees 1 over here, so this will be the 2, the premium of rupees 2 will get it over here, so this will be the 3, and the remaining will be the premium over here, so this will be the 5. And it's already given that oversubscribed by 80,000 rupees means 4 lakh. Again, it's stated in the question that 40,000 shares are rejected, so this 40,000 will get the nil, and the remaining amount or remaining shares get on a pro rata basis. So 3,60,000 will be getting as 3,20,000. Please be sure, sum of these two will be the 4 lakh and these two will be the 3,20,000. This is the applied and this is the allotted shares. Okay. Again, in a question it is given that a shareholder, and he had allotted a shares of 800, allotted 800 shares, and is given that he failed to pay the allotment money. He failed to pay the allotment money, and after that company already cancelled his shares. See, remember, failed to pay the allotment money. So line लगा करके हमने 800 कर दिए and this line indicate that इसके शेयर यही कैंसिल आउट हो चुके हैं. ओके, सो 800 शेयर से फेल हुई है और ये कैंसिल आउट कर दिया कंपनी ने. इसके बाद कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल बना रही है, बट अगेन इज गिवन इन द क्वेश्चन द श्याम अ शेयरहोल्डर and he had applied shares of 2700, applied shares, not allotted shares, applied shares of 2700, failed to pay the first call money, failed to pay the first call money. So आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो है यहाँ पर हम allotted money लिखते हैं, applied नहीं. So श्याम की तो applied गिवन है, तो सबसे पहले आप allotted shares of श्याम की कैलकुलेट कर लो, allotted शेयर्स ऑफ श्याम. सो जब आप श्याम की अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करोगे, सो सिंपल, दिस बाय दिस, दैट इज 3,20,000 divided by 3,60,000 into that is 2,700. So you got the value as 2,400 शेयर्स इसको क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं. सो ही फेल्ड टू पे. दिस इज द श्याम एंड दिस इज द राम. ही फेल्ड टू पे बाय 2,400 शेयर्स ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी. आफ्टर दैट कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर आल्सो. लेटर कंपनी डिसाइडेड टू रीइश्यू 1,500 शेयर्स at the rate rupees 8 each. Now the question is, see, the total cancelling share is how much? 3,200 including the Ram and the Shyam, whereas 1,500 ही सिर्फ रीइश्यू हो रही है. तो किसके कितने शेयर्स रीइश्यू हुई है? सो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि किसके कितने शेयर्स हैं. तो 1,500 is given in the supposition that suppose is including the whole share of the Ram and the remaining share of the Shyam. So 1,500 में 8 चले गए, तो श्याम की रिमेनिंग शेयर एंड राम की जो है वो होल शेयर हो गई. दिस इज द पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन. ये पूरी क्वेश्चन की एक पार्ट हो गई. ओके, ये पूरी एक क्वेश्चन की पार्ट हो गई. नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ प्रो राटा और नॉट. क्वेश्चन प्रो राटा की है या फिर नहीं है, वो हम कैसे चेकआउट करें. सो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको स्टेट कर दिए थे, बता दिए थे दैट हाउ टू क्लासिफाई दैट वेदर द गिवन क्वेश्चन इज ऑफ प्रो राटा और नॉट.
In this video, we will solve the question. If you want to know about all, you can get that video. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और आप उस वीडियोस पर जाकर चेकआउट कर लोगे. क्लियर? So 2400. तो ये क्वेश्चन प्रोराटा की है या नहीं? लेट्स टेक इट आउट. फर्स्ट द फर्स्ट कंडीशन ओवर सब्सक्राइब होनी चाहिए. ओवर सब्सक्राइब है. सेकंड कंडीशन शेयर्स क्या पे होनी चाहिए? अलॉटमेंट पे फेल होनी चाहिए. मींस सेकंड पार्ट पे फेल. ये शेयर होल्डर फेल्ड भी है. सो आपके क्या है? ये क्वेश्चंस प्रोराटा के हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व. अब ये क्वेश्चन की पार्ट हो गई. देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट है इसको फ्रेम करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है. ये एक बार फ्रेम हो गई तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे आपके. बहुत इजीली, रियली बहुत इजीली बन जाएंगे. ये फ्रेम करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगेन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. 3,20,000 शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी एट द फेस वैल्यू 10, प्रीमियम इज 5, 15. Allotted as application as 3 rupees, allotment as 5, remaining is 7, including premium of 1 in application, 2 in allotment, remaining in first and final call. Share received that is 4 lakh rupees, 3 lakh 60 को 320 दिए, 40,000 get nothing, that is the nil. Ram, a shareholder, allotted 800 shares, failed to pay the allotment money only. कंपनी इसको आगे ऑप्शंस भी नहीं दे रही है. दैट कम टू द फर्स्ट कॉल मनी. देन एंड देयर आफ्टर अलॉटमेंट कंपनी जो है इसके शेयर को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है. आफ्टर दैट कंपनी फर्स्ट कॉल बना रही है. बट अगेन फर्स्ट कॉल के वक्त में श्याम हुआ था अप्लाइड शेयर. श्याम ने अप्लाइड किए थे 27 से, वो भी फेल कर जा रहा है फर्स्ट कॉल पे. सो इसके लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमेशा अलॉटेड लिखते हैं. तो हमने अलॉटेड शेयर श्याम की निकाली, दिस बाय this into उसकी applied shares. तो we got the allotted shares of Shyam is 2400 carried over है. इसके शेयर्स को भी कंपनी कैंसिल आउट कर रही है. लेटर ऑन कंपनी जो है वो 1500 शेयर्स को 8 पे रीइश्यू करती है. कितने? 800 शेयर्स जो है राम की और रिमेनिंग शेयर श्याम की. ये पूरी पार्ट हो गई. अब हमारा पार्ट है एंट्रीज. बट एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्किंग नोट करते हैं जिससे हम सॉल्व कर पाए कि प्रोराटा क्वेश्चन. देखो अगर प्रोराटा क्वेश्चन नहीं होती है, नॉर्मली फॉर्मेट बनाने के बाद आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हो. बट प्रोराटा क्वेश्चन में वर्किंग नोट हमें शो करनी होती है. ठीक है? और हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है. तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वर्किंग नोट में आप सबसे पहले आपको क्या करनी है? इस राम की जो है ना, राम की अप्लाइड शेयर्स भी निकालनी है आपको. राम की अप्लाइड शेयर्स निकालनी है. तो अप्लाइड शेयर्स ऑफ राम जब निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी? तो अप्लाइड शेयर्स 3,60 by 3,20 into 800. सो 900 इसकी क्या आ गई? अप्लाइड शेयर्स आ गई राम की. कितनी? 900. ये करने के बाद अब आपको क्या करने हैं? अब आपको लिखने हैं वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ एरियर, calculation of area at the time of allotment. allotment के वक्त में कितनी एरिया हुई है. सो सिंपल इज दैट. ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें कैसे करना है? देखो ये मेन पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं. ये होने के बाद एंट्रीज बहुत इजीली बन जाएंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लिखने हैं कि राम holding 800 shares failed to pay allotment money. That is कितने हो जाएंगे? इसका हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो 800 into 5 that is 4,000. कुछ नहीं करना, बस सिंपल 800 into 5. ये फेल कर रहा है. अब इसमें से हमें क्या कर देना है? हमें करना है लेस. क्योंकि एक राम एक शेयर होल्डर है, इसने क्या किया था? इसकी अप्लाइड शेयर्स तो 900 थी, तो इसने 900 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी पे किया है. बट कंपनी ने इसे सिर्फ 800 शेयर्स अलॉट की हैं. तो इन दैट केस में कुछ इसकी एक्स्ट्रा पैसे कंपनी के पास है. वही कैलकुलेशन हम यहां कर रहे हैं. तो हम यहां पे लेस कर देंगे अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड through application money, through application money. तो जब हम एडजस्ट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो, इसकी जो अप्लाइड शेयर्स थी उसमें से माइनस करने हैं अलॉटेड शेयर्स, इनटू कर देनी है
एप्लीकेशन मनी। अगर ये कंफ्यूज्ड है क्या है तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये एप्लीकेशन मनी है। ये क्या है? एप्लीकेशन मनी। तो आपको कितने मिल जाएंगे? 100 into 3 300, that is he is failing only by rupees 3700। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली 800 into 5 4000 करके एरियर पे 4000 डाल देते हैं, बट थ्रूआउट क्वेश्चन में ये गलत हो जाएंगे। आपको इस तरीके से पहले वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट, वैसे मैंने लास्ट वीडियोस से पहले जो वीडियोस थे उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये हो क्या रही है, बट फिर भी मैं इसमें आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूं। और अगर पूरी डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल दूंगा लिंक, आप वहां पे चेकआउट कर लोगे। सो देखो हुआ क्या था कि राम ने अप्लाइड किए थे 900 शेयर्स और उसके अकॉर्डिंग उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया था, दैट इज 2700, बट कंपनी उसको सिर्फ 800 शेयर्स दे रही है, तो 800 into 3 बोलकर 2400 हो गया। कहने की मतलब 300 रुपए तो कंपनी, 300 रुपीज कंपनी विल आस्क, है कि नहीं? कंपनी के पास में ड्यू पड़ी हुई है कि नहीं? देखो एक राम एक शेयर होल्डर है, या फिर आप अपने आप को भी डिनोट कर लो। जस्ट इमेजिन आपने 900 के अकॉर्डिंग 3 रुपीज करके 2700 कंपनी को पे किया, कंपनी आपको 800 शेयर्स ही दे रही है, तो इस अकॉर्डिंग तो 2400 रुपीज आपको देनी थी, आपने 27 दे दिया, तो 300 रुपीज आपकी पड़ी हुई है कंपनी के पास में। तो आप क्या बोलोगे कि इसको हम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन, अलॉटमेंट पे आपको कितनी पे करनी थी? तो 800 into 5 करके 4000 पे करनी थी आपको, बट आप फेल कर पाए। तो फेल कर पाओ तो 4000 से तो फेल नहीं किया आपने। आप कंपनी को बोलोगे ना कि मेरी तो 300 रुपए आपके पास पहले से पड़ी हुई है, उसको एडजस्ट कर दो। तो आप एक्चुअल में कितने से फेल कर रहे हो? 3700 से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है, बट इसको क्वेश्चन करने वक्त हम कैसे दिखाएंगे? तो वो इस तरीके से हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो 3700 से ही वो फेल कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं दूसरे वीडियोस में ऑलरेडी। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे ही आपकी ये पार्ट खत्म हो जाती है, अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। अब आते हैं यहाँ पर हमारा एंट्री। ये सब कुछ हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो जब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला एंट्री आप लोग को अच्छे से पता है क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। अब बोलोगे सर अमाउंट कैसे होंगे? नो नीड टू वरी, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 4 into 3 दैट इज 12 लाख। 12 लाख। सेकेंड एंट्री की अगर बात करें, अच्छा नरेशन की बात करें तो बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड अगर एंट्री की बात करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट अब ध्यान देखो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसे आपने रिसीव किया है वो वाली। नेक्स्ट हो जाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम मनी, सिक्योरिटी भी है, चेकआउट करोगे ध्यान से दिख जाएंगे आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। देखो कहां पे कौन सी कैसे डिसाइड करनी है। देखो ये शेयर कैपिटल होती है, इसके अंदर देखो ये शेयर कैपिटल है, ये प्रीमियम है, शेयर कैपिटल प्रीमियम। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे जो आपने रिसीव किए हैं ना 360 से 320, वो आ जाएंगे अलॉटमेंट में, और जिसको आपने रिजेक्ट कर दिए हैं वो आ जाएंगे आपके बैंक में। तो एप्लीकेशन मनी आपकी हो जाएंगे। देखो कैलकुलेशन देखो अमाउंट में किस तरीके से होंगे। 12 लाख हो गई, शेयर कैपिटल में सिंपल 32 into 2 ये टोटल है आपका, ये एप्लीकेशन मनी की ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम मनी। तो 32 into 2 दैट इज 64, 6,40,000 आपकी शेयर कैपिटल में। प्रीमियम में आ जाएंगे 320 into 1 दैट इज 3,20,000। अलॉटमेंट में कितनी आ जाएगी? तो इसकी डिफरेंस कितनी है? 40 into 3 दैट इज 1,20,000 एंड बैंक में कितनी आ जाएगी? तो 40 हो गई आपकी, 40 into 3 दैट इज 1,20,000। आप ओवरऑल ऐड कर लो, यू विल गेट द 12 लाख। 6 7 8 9 10 11 प्लस 1 12। एंट्री क्या होंगे? तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये दो एंट्री हो गई। इसको हम अभी बोर्ड इरेज करेंगे, इसको होल्ड करके यहां रख देते हैं कि कॉल सी एरियर हमारी कितनी है?
कॉल्स इन एरियर हमारी 3700 रुपीज है। क्लियर, फाइन, समझ में आ गई है एंट्रीज। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे, दैट इज अलॉटमेंट की एंट्री। तो देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी। तो जब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, सो फर्स्ट एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू, देखो यहाँ प्रीमियम लिखना है नहीं लिखना है वो इस पर डिसाइड कर। देखो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है ना यहाँ पर 2 रुपीज, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कैसे आएंगे, अब इसका काम नहीं है, सारा काम इसका है हमारा, ठीक है ना। ये कितने आ जाएंगे 5 to 10, 16 लाख आपकी ये हो जाएंगी। कैसे हुई, तो कहीं 3,20,000 into 5, ये अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट और ये फेस शेयर की वैल्यू 3,20,000 into 5 16 लाख हो गई। 3,20,000 into 3 करके हम डाल देंगे कैपिटल में और प्रीमियम में 320 into 2, तो कितने हो जाएंगे 326 339 9,60,000 आपके शेयर कैपिटल पे हो जाएंगी एंड 3,20,000 into 2 दैट इज 224,236 6,40,000 आपकी प्रीमियम पे हो जाएंगे। क्लियर, 9 6 15 plus 1 16, इज इट क्लियर। सेकंड एंट्री जो हो जाएंगे दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो इस जगह पर एरियर है तो यू विल हैव टू राइट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं 16 लाख को ही यहाँ लिख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है 16 लाख रिसीव करने थे ना, बट ऑलरेडी आपने कुछ पैसे तो रिसीव कर रखा है 1,20,000, तो इसको आपको क्या करनी है डिडक्ट कर देनी है। तो 16 लाख में से 1,20,000 डिडक्ट कर दोगे दैट इज 14,80,000। एंड अब कॉल्स इन एरियर के लिए आपको ये कैलकुलेट नहीं करनी है, जस्ट सिंपल आप देखो आपने जो निकाल के रखा हुआ है ना कॉल्स इन एरियर, उसको यहाँ प्लॉट कर देनी है 3,700। अब जो डिफरेंस आ गई आप बैंक में लिख सकते हो दैट इज 76,300। इज इट क्लियर, समझ में आ गई। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोली है कि इस राम के शेयर को कंपनी आफ्टर अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दे रही है, मींस उसको फर्स्ट कॉल तक जाने भी नहीं दे रही है, आफ्टर अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दे रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस राम के शेयर की कैंसिलेशन एंट्री बना लेंगे। हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन एंट्री बना लेंगे। आप लोग ऑलरेडी पता है कैंसिलेशन एंट्री कैसे बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो ध्यान से देखो कि whether the RAM is failing at the security premium or not। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेल कर रही है ना, राम सिक्योरिटी प्रीमियम पे यहाँ फेल कर रहा है, तो आपको यहाँ पर डेबिट में लिखनी है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो हम यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर फेल कर रहा। अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे फेल नहीं कर रहा होता या मान लो यहाँ प्रीमियम नहीं होती तो हम यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखते। उसके बाद हमें लिखनी है टू शेयर फॉरफीचर और उसके बाद हमें लिखना है टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। अब सबसे ज्यादा गलती करने वाली पार्ट यहाँ है, देखो इस राम जो शेयर होल्डर है इसके लिए फेस वैल्यू पूरी 10 नहीं होगी, इसके लिए फेस वैल्यू सिर्फ कौन सा हो जाएगा, दिस एंड दिस, इसके लिए सिर्फ फेस वैल्यू यही दो हो जाएगी। देखो ये दो और ये तीन ही फेस वैल्यू है, बाकी तो 1 2 और 2 तो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू में 2 है 3 है और 5 है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी हमने देखा कि ये जो राम है, राम को तो हमने फर्स्ट कॉल पे जाने ही नहीं दिया, तो राम के लिए सिर्फ फेस वैल्यू ये 2 और ये 3 दैट इज 5 हो जाएंगे। तो 800 into 5 दैट इज 4,000। क्लियर। नाउ अब प्रीमियम पे कैसे, तो प्रीमियम पे वो कितने रुपीस से फेल कर रहा, 802 रुपीस से फेल कर रहा, तो दैट इज 1600। कॉल्स इन एरियर में कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, जो आपने कॉल्स इन एरियर लिखा था वो यहां पर आ जाएंगे 3700 एंड रिमेनिंग बैलेंस आप क्या करोगे, फॉरफीचर पर डाल दोगे, सो इट विल बी 1900। क्लियर।
ये कैंसिलेशन। अभी जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, बोलते हैं सर फॉरफीचर की बैलेंस तो उसने जितना पे कर दिया था वो हो जाती है। यस बच्चे वही होते हैं, बट ये उस कंडीशन में होती है जब क्वेश्चंस प्रो राटा नहीं होता है, ठीक है ना। प्रो राटा में करोगे तो देखो 800 into 3 24 होनी चाहिए, बट 19 है तो गलती हो जाएगी, वैसे वैसे नहीं करोगे, ठीक है ना। क्लियर। तो ये चीजें हो गई आपके कैंसिलेशन की एंट्री। अब क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। क्या है फर्स्ट कॉल की एंट्री, शो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन आप देख सकते हो यहां पे फिर से प्रीमियम है, तो यू विल हैव टू राइट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नाउ अब अगेन यहां सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती, बच्चे कई बार भूल जाते हैं, आते हुए भूल जाते हैं, बट आपको ध्यान रखनी है। देखो हमने 800 शेयर्स कैंसिल कर दिए ना, जब हम 800 शेयर्स कैंसिल कर दिए उसके बाद फर्स्ट कॉल को, सो नाउ अब ये 3,20,000 शेयर्स नहीं रहेंगी, ये हो जाएगा आपका 3,19,200। कितने हो जाएंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं 3,19,200। क्लियर। अब आपका ये वैल्यू 320 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने इस राम के शेयर को कैंसिल कर दिया, सो इट विल बी 3,19,200। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपकी ये है ये 3,19,200 into 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 3,19,200 into 2 से करोगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। बाकी बैलेंस आप यहां पर लिख लोगे, स्पेस नहीं है, मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन यहां पे कॉल्स इन एरिया हो रही है, सो कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव कितनी करनी थी, तो ये जो बैलेंस थी लिख लो 7214 7214 7 and 6 4 6 4 7 7 8 9 10 11 12 13 1 3 7 3 21 22 22,34,400। और इसमें से एरिया कितनी हुई है, तो सिंपल 2400 into 7 2400 into 7, सो इट विल बी कितनी है आपकी 2400 into 7 4 7 2 8 7 2 14 15 16, दैट इज 16,800। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करनी है, इसको सब्ट्रैक्ट करके बैंक में बैलेंस लिख लेनी है, इसको अच्छे से लिख देता हूं, इट विल बी 16,800। और अब आपको क्या करनी है, 22,34,400 से 16,800 निकाल देना है, ठीक है ना। सो 13 6 7 2 1 1 2 2 22 17,200। इज इट क्लियर, समझ में आ गई ये किस तरीके से हुई। हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री भी पास कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें श्याम के शेयर को कैंसिल आउट करना है, तो चलो श्याम के शेयर को कैंसिल आउट करते हैं। तो श्याम की शेयर जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, तो आपको पता है अच्छे से एंट्री क्या होती है, तो चलो एंट्री पास करते हैं। सो श्याम की शेयर को जब कैंसिल आउट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगेन आपको चेक करने हैं कि क्या वो प्रीमियम फेल कर रहा है, तो हाँ प्रीमियम फेल कर रहा है, सो यू विल हैव टू राइट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरिया। अगेन चेकआउट करने हैं, इसको तो हमने पूरी दी है, तो फेस वैल्यू 2 3 5 सभी हो जाएंगे, तो 24 into 10 दैट इज 24,000। अगेन अगर हम बात करें तो प्रीमियम पे ये 2 रुपए से फेल कर रहा है सिर्फ, देखो प्रीमियम टोटल 5 है बट ही इज फेलिंग ओनली फॉर ₹2, तो 2400 into 2 दैट इज 4800। कॉल्स एरियर कितनी थी आपकी, आपने कैलकुलेट की हुई थी 16,800। रिमेनिंग बैलेंस आप क्या करोगे, फॉरफीचर पर डाल दोगे, तो रिमेनिंग बैलेंस कितने आ जाएंगे आपके, दैट इज 12,000। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ अब हमें क्या करनी है, तो अब हमें री इशू करना है, अब हमें क्या करनी है, री इशू। तो री इशू जब हम करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। तो जब हम री इशू करेंगे तो री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट।
नाउ ध्यान से देखो 1500 शेयर को 8 में रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब कम में कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएंगे आपकी शेयर फॉरफीचर। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे 10 से ज्यादा पे रीइश्यू कर रहे होते तो शेयर फॉरफीचर ना आके क्रेडिट में आ जाती है आपकी टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैंक ऑन डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएंगे, तो सिंपल सी बात है 1500 into 8 करके जितने शेयर तो आपने बेचे, जितने में बेचे करके पैसे आ गए, तो 1500 into 8 दैट इज 12,000। यहां पर 1500 into 10 दैट इज 15,000, दैट इज फेस वैल्यू। एंड कितने रुपए कम है, 2 रुपए कम, दैट इज 3 रुपीस। लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका आंसर फाइंड करना। देखो इसके आंसर फाइंड करने के लिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वेज हैं, लेकिन नो नीड टू वरी, मैं यहाँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा जिससे आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो कैपिटल रिजर्व की बैलेंस को। देखो आपको करना क्या है, मैं आपको बहुत इजी वे में बता देता हूं, ठीक है ना। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं, देखो ये कंडीशन भी कब आती है, देखो जनरली क्या होती है शेयर फॉरफीचर में हम क्या करते हैं, कैंसिल वक्त में जो फॉरफीचर बैलेंस होती है उसको हम ऐड करते हैं और रीइश्यू वक्त में जो फॉरफीचर बैलेंस होती है उसे हम माइनस कर देते हैं। बट आपको यहां पर क्या करनी है, ये ऑप्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि देखो कैंसिल टोटल 3000 शेयर्स हो रहे थे, बट रीइश्यू जो है वो ओनली 1500 है, एंड दैट टू इसकी होल शेयर रीइश्यू हो रही है, बट श्याम की ओनली 700 शेयर्स रीइश्यू हो रही है, इसकी कैंसिल 24 आ रही है। तो यहां पर ही प्रॉब्लम आ जाते हैं कैलकुलेशंस। नो नीड टू वरी, जस्ट देखो ध्यान से करना क्या है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आपको चेक करने हैं कि राम का जब आपने शेयर को कैंसिल किया था उस वक्त में फॉरफीचर बैलेंस कितनी थी, तो फॉरफीचर बैलेंस 1900 था। इज इट क्लियर। अब आपको चेक करने हैं कि क्या राम के जितने शेयर कैंसिल्स थे उतनी रीइश्यू हो गई, तो यस हो गई, फाइन। अब आप डाल दो प्लस। नेक्स्ट श्याम की जब हमने शेयर कैंसिल की थी तो श्याम की कैंसिल शेयर करने वक्त में शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितनी थी, 12,000, तो लिख लो आप यहाँ 12,000। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, देखो इसके कैंसिल हुई है 2400 शेयर्स बट रीइश्यू हुई है सिर्फ 700, सो आप यहां पर लिखोगे 2400 और मल्टीप्लाई कर दोगे 700। ये वाली बात समझ में आ गई। देखो करना कुछ नहीं है, शेयर कैंसिल की शेयर कैंसिल, ये राम की है और ये श्याम की है। राम की 1900 शेयर्स फॉरफीचर आई थी, इसको हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जितने शेयर कैंसिल है उतने रीइश्यू भी हैं। ये हमारी फॉरफीचर श्याम के करने वक्त में है, हमने इसको डिवाइड कर दिया, जितने नंबर ऑफ शेयर कैंसिल हुई है मल्टीप्लाई कर जितने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, सबट्रैक्ट कर देंगे जो रीइश्यू करने वक्त में जो फॉरफीचर बैलेंस थी ना ये वाली। सो अब आपको क्या करने हैं, इसको सॉल्व कर लेने हैं। देखो सॉल्व कर लो, बहुत इजी है, ठीक है ना। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, देखो 1900 प्लस 3500 लेस 3000। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 35 माइनस 35, 5 प्लस 19 दैट इज 2400। देखो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट जैसा कोई इसमें कॉन्सेप्ट तो थी नहीं, बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट थी, आपको करना कुछ नहीं, बस ये चीजें ध्यान रखनी है। तो प्रो राटा के क्वेश्चंस देखो 6 मार्क्स के आते हैं, आइदर आपको पूरी प्रो राटा के क्वेश्चंस बनाने को दी जाएगी या तो हो सकता है इस बार से आपके एमसीक्यूज केस बेस्ड में आ रहे हैं, तो टिक करनी है। देखो क्वेश्चन कोई भी हो आपको नॉलेज तो जानना पड़ेगा, ऐसा ही रैंडमली तो आप एमसीक्यूज पे फिल करोगे नहीं, सो ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको जाननी पड़ेगी। तो जो मेन पार्ट है वो रीडिंग द क्वेश्चन। देखो क्योंकि जब आप एक सैंपल पेपर या फिर आप बोर्ड के पेपर देखोगे ना तो जनरली उसमें क्या होती है, आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में मिलेगी और बहुत लेंथी रहेगी। क्वेश्चंस एक पेपर में बोल्ड में लिखी होती है, तो आपको एक पेपर पूरा का शेयर्स का ही क्वेश्चन बड़ा बड़ा मिलेगा, तो वो देख करके आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी बड़ी क्वेश्चंस और मेमोराइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस को पढ़ के ही एक फॉर्मेट रेडी कर लेना है सबसे इजी वे में। उसके बाद क्वेश्चन की कोई काम नहीं है, देखो एवरीथिंग यहाँ पर सब कुछ लिखे हुए हैं, कहीं पर आपको फिर क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं कितने शेयर रीइश्यू हुई, प्रीमियम कहाँ है, कौन सी प्रीमियम कितनी है, कितनी ओवर सब्सक्राइब हुई, किसको रिजेक्ट किया,
कौन कितने से सब्सक्राइब कर रहा है, कौन कितने से फेल कर रहा है, किसके शेयर्स कितने में रीइशू हो रही, एवरीथिंग इज रिटन। और इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से आपके बनते चले जाएंगे। यहां पर भी आपने देखा बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशंस हो गई, समझ में आ गई। तो ये है एक पूरा प्रो राटा की क्वेश्चन जिसको हम क्या करते हैं 6 मार्क्स के आते हैं, सॉल्व होते हैं। सिर्फ 6 नहीं, इसमें आपके कुछ आपको बैलेंस शीट बनाने को भी आएंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लास्ट के 3 एंट्रीज की भी क्वेश्चंस आती हैं फॉर द 3 मार्कर्स में, कैंसिलेशन, रीइश्यू एंड ट्रांसफर वाली एंट्री, ये वाली भी आप डिस्कस करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में, क्लियर। बट सबकी बेसिस इसी पे है। अगर आपने ये बनानी सीख ली तो कैंसिलेशन, रीइश्यू और ट्रांसफर इसकी एंट्री बहुत इजीली आप सीख जाओगे। तो मेन जो है आपके इसकी प्रोराटा के सीखना, प्रोराटा की क्वेश्चंस अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे, समझ में आ गई। अगर इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट या कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करो। अगर आप कमेंट ना भी कर रहे हो तो इंस्टा के लिंक मेरे यूट्यूब पर है, आप वहां पर जाकर के वहां पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसकी रिमेनिंग नोट्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। और इससे जो बेसिक थी इसकी वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी पहले बना रखी हैं उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर चेक कर लेना, क्लियर। जिसमें आपको इसकी बेसिक चीजें उस वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बारे में डिटेल में जो बैलेंस शीट होंगी या कुछ और क्वेश्चंस होंगी वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास वीडियोस ही नहीं पहुंचेंगे। एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।